क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि इन चमचमाते हुए तारों के आगे क्या होगा? कहा जाता है कि जिस मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, वैसी ही बहुत सी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं। तो क्या यह भी संभव है कि उन गैलेक्सियों में हमारी जैसी ही दुनिया हो, जहां लोग रहते हों? क्या वहां भी लोग दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने जाते होंगे? और क्या ऐसा करते हुए वो हमारे ग्रह पर आ गए हों? क्या वास्तव में ऐसी दुनिया है जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं? क्या कभी वो हमारे प्लेनेट पर आ पाएंगे? Big silver aircraft hovering over a lake. The man who captured the image says he was convinced he was looking at a UFO. There was nothing like that I'd ever seen before. I had never seen anything like it before. It hovered above me, reflecting all sorts of light on my car. I knew in my gut it was a UFO, and I swear to God, I thought I was going to die. These stories will have you questioning if life exists outside our universe. आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का नजर आना, दूसरे ग्रहों पर जीवन के आसार दिखना, ये इस बात का सबूत है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। बढ़ती हुई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों के मन में ऐसे सवाल भी बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें हमने कई बार सुनी होंगी। इन बातों को हमेशा एक्सपर्ट्स और सरकार ने महज अफवाह का नाम दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिकी सरकार ने खुद ऐसी अफवाहों को हवा दी थी? पर क्यों? नमस्कार, मैं हूं आरजे तन्मय और मेरे साथ है आरजे अनीशा और आरजे श्रेया। आपका स्वागत है द वॉइस के इस एडिशन में। आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक एरिया 51 से जुड़ी कॉन्स्पिरेसीज और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में जानेंगे। Within the Nevada Test and Training Range is a high security area whose name has become synonymous with UFO theory, Area 51. Area 51 is a military base. The military didn't actually acknowledge that it existed until the 2000s, I want to say. And many in the UFO community believe that it's a hotspot for testing on alien technology. So when it actually was confirmed to exist, it was a really big deal. आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को खुद ऐसी अफवाहों को फैलाना पड़ा? और क्या सच में उन दरवाजों के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है? When I got off there at Groom Lake, I see a runway, a little tower, a couple hangars, a community center type building. We slept in trailers. Being informed on what you can talk about or not talk about starts right at the very beginning. It's just that way. You don't talk about anything that's classified. People on the project didn't know everything. You know, the mechanics, for instance, didn't know what we were doing in the air. That's how secret it was. Deep in the Nevada desert lies the top secret military base called Area 51. This giant complex remained unacknowledged and disavowed by the US government for almost 60 years. Area 51 ऑफिशियल्स की माने तो ये सिर्फ एक मिलिट्री फैसिलिटी है, लेकिन इसको लेकर लोगों के बीच अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। एरिया 51 के आसपास की सुरक्षा प्रोटोकॉल ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देने में मदद की है। सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है कि 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद साइट पर एक विदेशी अंतरिक्ष यान और उसके पायलटों के शवों को बरामद कर सरकार रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए
इसे फिर से बनाने में लगी है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस दुर्घटनाग्रस्त यान को बाद में एक वेदर बलून बताया। Roswell, New Mexico was the site of mysterious activity in 1947, but that's about all we know. I'm not really sure what happened, but obviously something happened. Something crashed. Evidence shows that probably it was an extraterrestrial craft. While the U.S. government contends that no alien activities occurred in Roswell in 1947, all kinds of conspiracy theories have been explored and still linger today. Debris reported near a military base in the town were from balloon-borne research projects, but many people still don't buy that explanation. एक थ्योरी ये भी है कि ये एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है जहां अमेरिकी सरकार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक पर रिसर्च करती है। 1989 में एरिया 51 एलियन से हमेशा के लिए जुड़ गया, जब रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। Bob Lazar is someone who became famous back in 1989 as a result of a very specific claim that he made. And that claim is that he worked at a place just south of Area 51. He called it S4. He was interviewed by Las Vegas journalist George Knapp in a series of very detailed interviews. We put him on the air, blacked out his face, and he told this incredible story. उसने दावा किया कि उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें देखी हैं और सरकार की उन यूएफओ पर चल रही जांच भी। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. इंडिपेंडेंस डे और द एक्स फाइल्स जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों से दशकों से चली आ रही इन अफवाहों को बढ़ावा मिला है। कुछ लोगों का दावा ये भी है कि उन्होंने बेस से आने वाली अजीब आवाज़ों और रोशनियों को देखा है। उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार दशकों से यूएफओ और एलियंस के बारे में सच्चाई छिपा रही है और एरिया 51 इस कवर अप का केंद्र है। लेकिन क्या सच में एरिया 51 से जुड़ी अफवाहों में कोई सच्चाई है? इसकी शुरुआत 1954 में हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर ने एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बनाया। इसे आम नागरिकों और जासूसों की पहुंच से दूर रखने के लिए लास वेगस, नेवाडा से कुछ मील की दूरी पर स्थित एरिया 51 को चुना गया, जहां U-2 और SR-71 जैसे जासूसी विमानों और ड्रोन का विकास और उनकी टेस्टिंग हो सके। कुछ डिस्क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि मूल रूप से यह आर्मी एयर कॉर्प्स के पायलटों के लिए हथियारों को टेस्ट करने की जगह थी, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। सुपरसोनिक स्पीड और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट की क्षमता रखने वाले जासूसी विमानों का परीक्षण ही क्षेत्र में यूएफओ देखे जाने के लिए जिम्मेदार था, और इन प्रोग्राम्स को गुप्त रखने के लिए अमेरिकी सरकार को विमानों के परीक्षण और संचालन के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। इन यूएफओ का एरिया 51 से जुड़ा खुफिया एजेंसीज के लिए इस प्रोग्राम को सीक्रेट रखने में उपयोगी था। हालांकि इसके अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर अगस्त 2013 में CIA द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ओबामा एरिया 51 का सार्वजनिक रूप से उल्लेखन करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। There was no evidence of any secret military base in the Nevada desert. But then, in 2013, a Freedom of Information Act request forced the CIA to finally acknowledge that Area 51 is real. The story of Area 51, it exploded around the world. The reason you know about Area 51 is because Bob Lazar and George Knapp on the news 1989 made it a household name. That's the reason. लेकिन एरिया 51 में क्या होता है यह अभी भी गुप्त है। एरिया 51 की सच्चाई एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज से
परे है। वास्तव में उन गार्डेड गेट्स के पीछे क्या हो रहा है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51?